लवप्रीत, तुम्हारी ट्यूटोरियल शीट 1 की कॉपी नहीं आई अभी तक मेरे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है, मिसिंग दिखा रहा है, एक बार आप चेक करो। है, अब वो तुम देख लो। हाँ, कौन? हाँ, बताइए अभिनव। हम्म, ठीक है, अब जो भी है देखते हैं। ओके, वेलकम। So last turn पे we discuss about the business value of internet. There were some important point regarding the business value of internet. I am going to recap that points.
First one was attract new customer with the help of internet or World Wide Web. Second one was improve service to existing customer via the internet or the web. Third one was develop new web-based market and distribution channel. Fourth one was develop new information-based product accessible through the web or the internet. So, continuing the same topic, there are some important features of business value of internet. These are, first one was global dissemination. Global dissemination means whenever we are doing the business, whenever we are doing the interaction of customers, Aditya timely or better. So most of countries now have internet connection. Global communication has become a fact of life in business. That is your email, World Wide Web sites, other internet services made international dissemination of information significantly faster, cheaper, quick, responsive, and easier. So, global, in the context of global dissemination, whatever information is passed, that is quick response, appropriate, as well as cheaper. There are many other features in regarding the global dissemination, because now a time whenever you are want to any information or you search any services, there are a lot of scope to search in your country, in your area, as well as also globally. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Second one was important point. A feature is interaction. Interaction. So, with the help of internet, interactive communication is another key capability of the internet. The business value through the internet increases. This may take form of interactive websites, different forums, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कशन फोरम, एंड चैट ग्रुप्स So interaction between the customer, between the partners during the business is very important and effective. Abdullah दोबारा रिज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. थर्ड वन इज customization. The third feature is customization. Means the main business or the development procedure is centered to the customer oriented. I already told you in many times, also in the SDLC discussion, that all the software is based on customized format, customer oriented format. And whenever we are going to develop or deal with a business, customer is involved each and every phase. मतलब कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहीं डार्क बॉक्सिंग कर दी है या हाइड कर दिया है. आप कस्टमर को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को ईच एंड एवरी फेज में इन्वॉल्व करते हैं. सो
Business is also key term in which customization or the customer involvement is helpful for growth of your business, as well as also it is helpful to satisfaction of customer also. The ability to automatically provide information and services customized to an individual customer or uses a strategic business capability with the help of, जो हमने 3 टर्म आपको बताएं, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अब्दुल्ला अकील, मेरी आवाज आ रही तुम्हारे पास? ट्यूब शीट कहां है तुम्हारी? देखिए, अटेंडेंस हम नहीं लगाएंगे, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पहली ट्यूब शीट भी नहीं आई मेरे पास और सेकंड भी नहीं आई है, कंडीशन वही है। बस मुझे आपसे यही कहना था, आप कुल देख लीजिए, जब तक आपको लगे आप इत्मीनान से काम करके दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वन इज कोलैबोरेशन। So the collaboration contracts the internet, intranet and extranet enable easy and efficient access to shared data with other network resources. So collaboration actually enhances the process among team. Important point मैं लिख दे रहा हूं, डिटेल नोट प्रोवाइड करूंगा। Among work group and business partners, so that the team, work groups or business partner provide strategic business value to your organization and for the customer satisfaction. This is the only mechanism by which the development procedure for any information system or any information system solution will be provided to the customer with the collaboration of customer, involvement of customer, so that the satisfaction level is already increased and obvious. Fifth important point, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो बिजनेस वैल्यू जब आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द की टूल, इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट इज द एक्चुअली इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बाय विच एनी कस्टमर और द बिजनेस ओरिएंटेड company organization can contribute to each other for the fulfillment of common goal. The goal of customer is to achieve good product and satisfactory services from the organization. The goal of organization is to gain the profit and also satisfaction of customer. तो ये कॉमन गोल है दोनों का, कि दोनों ही चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। कस्टमर खुद सोचता है कि वो खुद भी सेटिस्फाई हो आफ्टर द अचीविंग द प्रोडक्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वांट दैट इट्स कस्टमर आल्सो सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज। तो ये कॉमन गोल इज आल्सो अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नाउ कम टू द another important point, that is customer value of internet. अभी था बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कस्टमर वैल्यू ऑफ इंटरनेट। मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एनी development organization or other services organization, the chief business value of internet lies in ability to help them keep customer loyal, anticipate their future needs, respond to customer concern and improve customer services. These are the key features by which
Any organization can grow without the satisfaction of customer, without the satisfaction of the services provided by the organization. If customer is not satisfied, the goal of organization will not be achieved. So the main important customer value of internet, that is keep customer loyal. इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी लिखते चलिए, ये ना सोचिए कि सर नोट देंगे तो हम पढ़ लेंगे. सेकेंड, फ्यूचर नीड्स will be covered. Third important point, respond to customer concern, यानी जो भी उसकी क्वेरी है. Concern. And last but not least, improve customer service. These are the basic key concept, key concern for any organization. So there are some other business value as well as customer value that can be achieved combinedly or collaboration of both. These are business values एक्चुअल में जो आपकी होती हैं. दीज आर, फर्स्ट वन, लोअर सपोर्ट कॉस्ट. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप योर सॉफ्टवेयर इन द 4th और 5th सेमेस्टर ड्यूरिंग द समर ट्रेनिंग एंड द मेजर प्रोजेक्ट, these are the key feature kept in mind before you are going to develop any software or small application. जब भी आप बनाएंगे तो इन सब चीजों का ध्यान में रख करके ही आप पहले तो सॉफ्टवेयर चूज करना है, टॉपिक को चूज करना है और तब उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है. विदाउट दीज फीचर्स इट इज नो मीन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टोटली, आप कह सकते हैं कि आपके जो एक्चुअल गोल है उससे मीट नहीं होगा. जब ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा है तो गोल भी कभी भी अचीव्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन इज सपोर्ट कॉस्ट विच विल बी लोअर, मिनिमाइजेस बाय एम्पावरिंग कस्टमर टू सॉल्व इश्यूज इंडिपेंडेंटली एंड इमीडिएटली. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट की कंसर्न है एज द कस्टमर वैल्यू ऑफ इंटरनेट. सेकेंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस. प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस. आप सभी ने वेबसाइट देखी होगी, बहुत सारे आपने जो है कंपनी की वेबसाइट विजिट की होगी, वहां पे आपने सर्च का ऑप्शन देखा होगा. जब भी कोई एक वेबसाइट होती है या हेल्प का ऑप्शन दिया होगा, तो ये दो ऐसे ऑप्शन या मेन्यूज हैं जो कि आपको ग्लोबली एक्सेस करते हैं, ग्लोबल एक्सेस करने की परमिशन देते हैं. क्योंकि ये नहीं करते कि आप उस वेबसाइट पे जो भी दिया है बस उसी पे रेस्ट्रिक्ट हो जाइए. दे आल्सो गिव्स अ फीचर, दे आल्सो प्रोवाइड रिलैक्सेशन to search their site, the search items available in their site, as well also you are free to search same item from the same search engine using their website. सिर्फ ये नहीं कि आप उसके लिए गूगल खोलिए जाकर के, वहां पे सर्च का ऑप्शन होगा, वो डायरेक्टली गूगल पेज पे या आप कह सकते हैं येलो पेज पे या कहीं भी और जस्ट डायल, इस तरह के छोटे छोटे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर उनसे कांटेक्ट रहता है और वहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है, एक सर्च का मॉड्यूल बनाना होता है. तो वहां आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं. इजी, समझ रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने तो अपनी वेबसाइट ही इसी तरह से बनाई, अपना सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया है कि वो ग्लोबली एक्सेस करते हैं. जैसे आपने पॉलिसी बाजार जो आपने सुना होगा, policybazaar.com, उस पे देखिए वो इंश्योरेंस अपना बेचते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं. तो वो इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं, वहां पे कोई हाइड नहीं है. तो वो सेम प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यहाँ पे आपकी नेशनल और इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज, दीज आर इन दी सेम प्लेटफॉर्म. तो आप आसानी से उनको कंपेयर कर पाते हैं और
अपना इंश्योरेंस खरीद पाते हैं। तो एक्चुअली ग्लोबल एक्सेस का प्रोविजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। ये ना हो उससे कुछ छुपाइए नहीं कि अब आप हमारे शॉप पे आ गए, हमारे दुकान की ही बात करिए, बाकी प्रोडक्ट को भूल जाइए। समझ रहे हैं? और ये नहीं कि हमने रिकॉर्ड किया तो हमने पता लगा लिया कि ये कस्टमर ऑलरेडी 3-4 जगह विजिट कर चुका है, अब हमारे पास दोबारा आया है, यानी हमसे ये कुछ ज्यादा सेटिस्फाई है तो हमने ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर कस्टमर माइंड। Third important customer value regarding to the business value, that is improve service by focusing internal key aspects and customer support। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप लोगों ने सभी लोगों ने फेस भी की होगी। वेन एवर यू आर गोइंग टू बाई एनी मोबाइल और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, देयर इज सम इश्यू ऑफ वारंटी। तो वारंटी में क्या कहते हैं, कुछ तो अच्छे जो प्रोवाइडर होते हैं वो कहते हैं कि आपने हमारी शॉप से लिया है तो हम भी आपको इसका जो मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देंगे। वारंटी का मतलब हमारे पास लाइए और हम इसको आपको ठीक करके दे देंगे। कुछ ऐसे भी स्टोर कीपर्स होते हैं या शॉप कीपर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ से आपने ले लिया लेकिन ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। समझ रहे हैं? तो वहां आप जाके कांटेक्ट करिए, हम तो सिर्फ सेल करते हैं, बाकी हमारा कस्टमर केयर नंबर अलग है। तो कस्टमर, कुछ ऐसे टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो थोड़े मूडी एंड चूजी होते हैं एंड दे अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक। इस तरह के ट्रैफिक में वो नहीं फंसना चाहते हैं, वो समझते हैं कि एक सिंगल स्टोर पे जाकर के उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है बिफोर कस्टमर चूज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी शॉप और द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना हो कि आपने उसका अलग मॉड्यूल बना रखा है, प्रोसीजर और ज्यादा डिले और हैट्रिक कर दिया है और वहां पे आपने क्यू बना दी। कस्टमर ये चाहता है कि हमको एट ए शॉप जहां से हमने परचेज किया है वहीं पे इंटरनल कस्टमर के थ्रू ही हमको जितना भी है मेंटेनेंस मिल जाए। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट आल्सो इंक्रीज द कस्टमर वैल्यू थ्रू वेन एवर यू आर गोइंग टू बिजनेस ऑनलाइन। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोएक्टिव सर्विस। आप ऐसा मैकेनिज्म भी बनाइए, इट इज ऑलरेडी ऑब्वियस एंड सम कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन वेरी मच कंसर्न अबाउट द प्रोएक्टिव सर्विसेज। ऑलरेडी वो सर्विस प्रोवाइड करती, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि वो कहती हैं कि हम 2 साल 3 साल 4 साल जो स्टार्टिंग के वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसकी कॉस्ट वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में ऐड करके ही मैनेज करते हैं, वो ऐड कर लेते हैं पहले ही। तो आपको लगता है वो फ्री में हमको सर्विस दे रहे हैं, हालांकि आप उनको ऑलरेडी पे किए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये उनकी गुड प्रैक्टिस कह सकते हैं या बिजनेस टैक्टिस है कि आपको लगता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ये रहता है कि अगर हमने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन से डील किया है तो हमारी प्रॉब्लम एटलीस्ट 4 to 5 ईयर ये सॉल्व कर देंगे, 2 to 3 ईयर सॉल्व कर देंगे। बाद में देखा जाएगा, फिर पे कर देंगे और फिर साथ ही साथ कस्टमर और जो ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप इसी तरह से बॉन्ड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इफ एनी पॉइंट you are not satisfied with their services, you can quit or sell out the old product and buy to the another organization for new product। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो these are the 4 key important customer value whenever you are doing the business through the online। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो लास्ट टाइम हमने बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट पर आया था और अभी कस्टमर वैल्यू ऑफ इंटरनेट, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी पॉइंट अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लें। लवप्रीत, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट एंड कस्टमर वैल्यू ऑफ इंटरनेट। विजय प्रकाश,
हाँ बताइए। बताइए विजय प्रकाश। सब आ गया। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम है। हाँ। स्टार्टिंग में किसका बताना है? हैं? किसका? ये वाले फीचर्स, ये वाले बिजनेस वैल्यू इंटरनेट। हाँ। ठीक है, मेन जो फीचर्स है, वेन एवर यू आर डीलिंग विद द प्योर बिजनेस थ्रू ऑनलाइन, जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट डब्लू, ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक स्मॉल इंटरनेट, एक डब्लू जो कैपिटल इंटरनेट है, दोनों में फर्क है। कैपिटल इंटरनेट आपका डब्लू वर्ल्ड वाइड वेब, और स्मॉल इंटरनेट इंट्रानेट भी हम लोग बोलते हैं। इसीलिए इंटरनेट जब बात आती है तो हमेशा कैपिटल इंटरनेट की ही बात होती है, स्मॉल इंटरनेट की बात नहीं होती है। अगर स्मॉल इंटरनेट की बात करनी है तो उसको हमने दूसरा नाम दिया है, उसको कहते हैं इंट्रानेट। So first one is global dissemination, by which you contact the companies and the customer contact with each other globally. The features of global dissemination is quick response, appropriate solution, faster and cheaper. Second one is interaction. जब हम कहते हैं ग्लोबल अटैचमेंट की, ग्लोबल रिस्पॉन्स की, उसमें मेन कॉन्सेप्ट आता है interaction. Interaction can be done by the different websites, उनका internal chat server और the discussion forum. Next है customization. All the business must be done through the customization, means customer oriented, with the help of customer and the involvement of the customer. All the product will be done, and the intranet, extranet और द कैपिटल इंटरनेट, किसी के थ्रू भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मींस कंबाइनिंग द कंपनीज कॉमन गोल्स, teams, work group, and business partner to achieve a common goal, which is already I told you in earlier. Whenever we are going to develop any information system, we also take help of हार्डवेयर आवर पार्टनर्स, जो कि हमारे हार्डवेयर पार्टनर्स हैं, सम अदर पार्टनर्स, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनके थ्रू ही आप एक्चुअल में रिजल्ट दे पाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि आप सपोज करिए कंपनीज के पास जाते हैं, एसी परचेज करने जा रहे हैं या कहीं से फ्रिज लिया, तो इनको इंस्टॉलेशन की एक अलग टीम होती है, उनका टाई अप होता है। तो उसमें से कुछ फ्रीलांसर की तरह भी वर्क करते हैं, कुछ उस कंपनी से टाइप भी होते हैं, लेकिन टास्क एक ही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा इसमें। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें पेमेंट, ऑल द ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ डेटा, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी आपकी चेंज होगी, एक्सचेंज होगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी। इलेक्ट्रॉनिकली की बात है, साथ ही साथ फंड ट्रांसफर, पेमेंट गेटवेज इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी सब इलेक्ट्रॉनिकली ही होंगे। नाउ कम टू द ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सबसे पहले मुझे बताइए कॉमर्स होता क्या है? वैष्णव गुप्ता। वैष्णव।
कॉमर्स का मतलब क्या है? अंजलि, कथा सुन रहे हो बस? अंजलि बताइए बेटे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब हो गया ऑनलाइन। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से ना जोड़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया ऑनलाइन। ई, यहाँ तो हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन जब भी आप कहीं और देखेंगे ई वर्ड हमेशा छोटा होता है, स्मॉल ई बना होता है, उसके बाद का जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर का होता है। तो ई कॉमर्स एक्चुअली में जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ई बिजनेस, तो ई स्मॉल होगा, डैश कैपिटल बी होगा। ठीक है? ई पेमेंट, तो ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी थ्रू द इंटरनेट। सो द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, वो उसमें सब आ जाता है, गुड्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, सेलिंग एंड बाइंग गुड्स, थिंग्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। बेसिकली तो ये 2 टाइप की होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन अगर आप इसको और कैटेगराइज करेंगे फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड अंडरस्टैंड, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज बी टू बी, सेकेंड वन इज बी टू सी, थर्ड वन इज सी टू सी, and fourth one is C2B. Tomorrow is also there was presentation of Ritik Srivastava and their team members, and they give a good presentation on electronic commerce, and they also discuss about the types of e-commerce. So I am also going to discuss the types of e-commerce for all of you, because some were absent and second group was not present there. So whenever come to the business to business e-commerce, business to business e-commerce means the category of electronic commerce involve both electronic business marketplace and direct market links between the business. ठीक है? समझ में आया? बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मार्केट प्लेस और साथ ही साथ डायरेक्ट मार्केट लिंक, दोनों के बीच में जब आप कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं थ्रू द इंटरनेट, देन इट इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। जैसे कि आपने एक कोई वेबसाइट बनाई, जैसे अमेजॉन का नाम लिया, तो अमेजॉन इज ऑलरेडी डीलिंग विद, और अमेजॉन हैव डिफरेंट पार्टनर्स विच इज आल्सो इन फील्ड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। उनके साथ कोलैबोरेट करके अमेजॉन खुद सारे प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स का ग्रुप होता है और वो बिजनेस करते हैं, यानी जो स्मॉल पार्टनर जो उनके साथ अटैच्ड है वो भी बिजनेस करते हैं एंड अमेजॉन भी बिजनेस करता है। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस, दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बोथ पर्सन डूइंग द बिजनेस, बोथ पार्टनर्स डूइंग द बिजनेस, वो अपना रिटेल में भी डील कर रहे हैं, जो स्मॉल पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, साथ ही साथ वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे भी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग वेंडर के साथ कोलैबोरेशन में है और बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। सेकेंड वन इज, इसको मैं किसी को कोई भी डाउट हो पूछेगा। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। In this form of e-commerce,
business must develop attractive electronic marketplace for sell product only for the consumer. यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी बिजनेस एक है और वो कंज्यूमर उससे डायरेक्टली बेनिफिट ले रहा है. तो दिस टाइप ऑफ कॉमर्स, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू डील विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. यहाँ पे बिजनेस एक पर्सन कर रहा है और बाकी सारे कस्टमर हैं. वो डिपेंड करता है कि कभी कभी जो स्मॉल मार्केट होल्डर्स या स्मॉल शॉपकीपर्स आल्सो कस्टमर के फॉर्म में वर्क करते हैं. कौन बोल रहा है अभी बीच में? माइक ऑफ कर लीजिए अगर कोई और प्रॉब्लम है तो. यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अटेंशन पे करने की जरूरत है कि इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े पार्टनर से डील करते हैं एज मीन्स ऑफ स्मॉल कस्टमर. इट शुड बी केप्ट इन माइंड. ये क्वेश्चन रेज होता है हमेशा, समझ रहे हैं? हालांकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब किसी बड़े पार्टनर के साथ उनकी डील होती है या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका अटैचमेंट होता है तो दे आल्सो वर्क्स एज अ कस्टमर. दिस इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर. थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. इसमें कस्टमर टू कस्टमर, जब आप बिजनेस करते हैं कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर का क्या हो गया? विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स और द इंटरनेट, बाय द सॉफ्टवेयर, बाय द पोर्टल, द कस्टमर टू कस्टमर इंटरैक्ट for a meaningful purpose to share their information or the services. Then this type of e-commerce is known as consumer to consumer. I already give an example earlier as OLX. OLX पे क्या होता है कि हम भी कंज्यूमर हैं और साथ ही साथ दूसरा पर्सन भी कंज्यूमर है. सपोज करिए आपकी पुरानी मोटरसाइकिल है, बाइक है, अब आप इसको आप सेल करना चाहते हैं, तो बाय द मीन ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर OLX और द सॉफ्टवेयर आपने अपना एड पोस्ट किया. दूसरा कस्टमर पुरानी बाइक को लेना चाह रहा है बिकॉज ही डोंट हैव सम इनफ मनी टू परचेज अ गुड न्यू बाइक. वो पुरानी बाइक ही ले सकता है, तो वो वहीं पे सर्च कर रहा है उसी पर्टिकुलर साइट पे, और आपकी और उस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली OLX. So this type of business is known as, this type of dealing of commerce is known as consumer to consumer. And second one is consumer to business e-commerce. यहाँ पे the actual end user or the actual customer whenever deal with a partner, sub partners or the big partners, then this type of business or the commerce known as consumer to business e-commerce through electronic mode. इलेक्ट्रॉनिकली ही डीलिंग हो रही है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड. जैसे सपोज करिए एक छोटा सा सर्विस प्रोवाइडर, ट्यूटर, ये डील करते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स हैं जो कि इनको दूसरी जगह सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं. तो इनके बीच में जो बिजनेस होता है, इनके बीच में थ्रू द इंटरनेट और द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, देन दिस टाइप ऑफ बिजनेस और दिस टाइप ऑफ डीलिंग इज नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस. बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैंने जैसे बताया था टीवी इंस्टॉलेशन का या फ्रिज इंस्टॉलेशन का, तो ये सब छोटे पर्सन होते हैं ऑलरेडी, और ये अपनी सर्विस या ये अपने आप को अटैच करते हैं बड़े बिजनेस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन फिर फर्दर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डील करते हैं और वर्क एज ए मिडिल मैन.
So this type of dealing, this type of business is known as consumer to business e-commerce through electronically ही ये सारे बिजनेस होते हैं. So this is the four types of e-commerce. I already told you basically दो टाइप के ई-कॉमर्स होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर. लेकिन ये भी बाई सम मीन्स इनको सब कैटेगराइज कर दिया गया है. सो नाउ देयर आर फोर कैटेगरी ऑफ ई-कॉमर्स. इसको देखिए, किसी को अगर कोई भी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से बहुत क्वेश्चन आएंगे. नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टेक्नोलॉजीज. पहली टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है वो होती है इंटरनेट, जिसमें कि हम बात करते हैं इंटरनेट के साथ ही साथ इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट. एक्चुअली द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. वो चाहे आपका इंटरनेट हो, एक्स्ट्रानेट हो या www इंटरनेट. It is the foundation or the key element doing the business electronically. This is the first important technology required. Second, security. Security is the important key point. Customer must be provided with a range of secure information whenever it deal the business डील विद ऑर्गेनाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिकली. इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर वो डील कर रहा है तो सिक्योर होना चाहिए. गुड पेमेंट सर्विसेज. यू कैन आल्सो सो दैट दीज आर टेक्नोलॉजीज और द की फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स. देयर मस्ट बी गुड पेमेंट सर्विसेज. देयर मस्ट बी प्रॉपर सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पेमेंट. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. इंटरनेट एक्सटरनेट के अलावा whenever you going to establish a network, you are going to deal with your customers. It is also necessary to develop a good infrastructure with the help of topology method or by the means of other protocols. इंफ्रास्ट्रक्चर आपका गुड होना चाहिए. आप टोपोलॉजी कोई भी यूज करें, चाहे मेश हो, रिंग हो, स्टार हो, ट्री टोपोलॉजी हो, जिससे कि each and every customer should be connected to you directly without using any third party or the middleman. This is the key concept. This is the basic important features. Also, barriers of entry are low. Whenever any customer or any middleman want to do the business electronically, the barriers, the checking points should be low. बहुत बड़े कांस्टेंट ना लगा दीजिए, पता चला वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो वन ओन द मार्केट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये ना हो कि कोई मार्केट पे कब्जा कर ले. कोई ये ना समझे कि whenever you dealing with the electronically the business through the internet, he is the king of the created market, own created company. वो अपने आप को ये ना समझे कि हम ही किंग है. मार्केट सबके लिए होनी चाहिए, ग्लोबली एक्सेस होना चाहिए, इक्वली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस is becoming
यूनिवर्सल, जब इसको हम बात करते हैं तो साथ में एक्सेस की बात भी जुड़ जाती है, जो ओन द मार्केट, साथ ही साथ एक्सेस, जो इसी का सब पॉइंट यू कैन से दैट इज बिकमिंग यूनिवर्सल, इट इज नॉट पर्सनलाइज्ड। ओके, यहाँ पे कुछ ना हो कि नहीं ये हमारा जो है ये हमको ज्यादा हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ये सब आप तब कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, कैपेसिटी ऑफ द इंटरनेट, कि भाई उनका नेट नहीं चल रहा है। जैसे आप कभी कभी कोई भी टिकट बुक करते हैं थ्रू द ऑनलाइन, नेट की स्पीड स्लो है, लेकिन वो साइट्स के रिसोर्सेज सबके लिए सेम अवेलेबल है, तो आपकी नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से आपका टिकट नहीं हो पाया, दूसरे को सीट मिल गई, और जब आप वहां तक पहुंचे तब तक वो सीट आपको वेटिंग में दिखा रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि नहीं, वो जो हमने बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, जो उनको हम लोग ब्रोकर्स कहते हैं, वो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट, टेक्निकल जो है कहते हैं गैजेट्स लगा करके पर्टिकुलर रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर में नहीं आते हैं, तो उसके थ्रू वो ये खेल करते हैं। वो एक अलग एग्जाम्पशन है, उसके लिए अलग प्रिकॉशंस लिए गए हैं। अदरवाइज एक्सेस जो भी है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। एंड द टेक्नोलॉजी इज आल्सो अवेलेबल टू एवरीवन। सभी के लिए सेम टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, सेम प्राइस होना चाहिए, वहां कहीं हाइक ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि मूड जान लेती हैं कस्टमर का, और उसके अकॉर्डिंग ही रेट भी फ्लो करती हैं। अगर उनको लगता है कि जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करती है कि उसी हिसाब से ही रेट को भी फ्लक्चुएट करने लगते हैं, प्रोडक्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स। ये टेक्नोलॉजी है, ये फीचर भी कह सकते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिसाइड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सम आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज, जब भी आप बात करते हैं, दैट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मीन्स whenever you are going to deal from any business organization or business organization deal with any customer or the consumer, there must be a account or the personal link, ये ना हो कि वो कोई भी इंटरफेयर दूसरे के अकाउंट में या दूसरे के इंटरेस्ट में अपना इंटरफेयर कर पाए। सो देयर मस्ट बी पर्सनलाइजेशन whenever the business is going on. Second one is socialization. It must be the spirit. It is very necessary for any business organization, the spirit to serve the people, the spirit to satisfy the customers must be keep in mind while we are going to do any business, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो या ऑफलाइन हो, ये जरूरी है। तो सोशलाइजेशन इज द की कॉन्सेप्ट whenever business is going to done. Third one is look and feel. Very very important point है, look and feel, यानी your page must be attractive, virtual storefront will be attractive, all information must be placed as per the arrangement in the frame, in the div, in the span form, प्रॉपर जो है मैसेजिंग हो, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्टिव हो वो फ्लैश के थ्रू आए, मार्क्यू लगा दीजिए। इस तरह इसके फीचर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे या साइट पे या पेज पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो लुक एंड फील विल बी गुड सो दैट द कस्टमर और द कंज्यूमर attract to your website, to your business, and also attract for your product. All the information about the product placed at any subsequent area, and information should be placed or the reveal as per the actual requirement of the user. कुछ भी उसमें हिडन नहीं होना चाहिए, ये बेसिक है।
ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, आप भी किसी भी पेज को तभी ज्यादा लाइक करते हैं जो कि ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है आपको। फोर्थ वन इज इंसेंटिव्स। There must be some offers to attract your customers. It should be kept in the mind and also posted into the page. जो भी जिस भी मॉडम से जिस भी थ्रू आप इसको चाहते हैं, इसको पोस्ट कर दीजिए। और जब आप पोस्ट कर देंगे तो क्या होगा, यूजर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो अट्रैक्ट हो जाएगा। So these are the some important characteristics besides these characteristics as technological point of view. Now come to the EDI, electronic data interchange. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑल्सो रिटेन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स से अगर टाइप्स आएगा, नहीं तो ये जरूर आता है। So electronic data interchange or EDI involves the electronic exchange of business transaction document over computer through the networks between trading partners and the customers. So जब भी हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स is incomplete without EDI because all the information, all the exchange must be done through electronically data interchange. तो जो भी प्रोसीजर होगा वो EDI के थ्रू ही होगा, चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट हो, बिल आए, पेमेंट करेंगे, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा। तो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बेनिफिट्स ऑफ EDI, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, ये आपको पता है एकदम से तुरंत आ जाता है, बहुत देर वेट नहीं कर सकता है। पता चला चेक लगाया है तो वेट करना पड़ रहा है, ड्राफ्ट लगाया तो भी वेट करना पड़ता है। ताकि ड्राफ्ट इज आल्सो रनिंग मनी, बट उसमें भी टाइम लगता है। आल्सो रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल्स, डिफरेंट फॉर्म, ये सब जो बनाने की है वो जरूरत नहीं पड़ती है। एंड हाई इंफॉर्मेशन क्वालिटी, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ डील करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं है ना, ये है कि हम आपसे मिल के बताएंगे, तो इंफॉर्मेशन जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। दीज आर डायरेक्ट बेनिफिट्स। देयर आर आल्सो सम बेनिफिट्स दैट आर इनडायरेक्ट। हम हालांकि बेनिफिट की कैटेगरी में ही लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। फिफ्थ पॉइंट उसी की कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, जो कि आपकी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज भी आप इनको कह सकते हैं। सो इंक्रीज्ड ऑपरेशनल इफिशियंसी, whenever you are doing the business, all the data is interchange or exchange with electronically, the operational efficiency already increased. Second, sixth point, better customer service, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे डाउट उसके वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही साथ इंक्रीज्ड ability to compete, I already told you in the last, जो लास्ट वाला आपका सेक्शन था, कि there must be all the information in a first forum, और ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। all the information should be tested, checked, verified globally, सेम प्लेटफॉर्म पे। तो उससे यूजर के डाउट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इज आल्सो रिड्यूस्ड। सारे वहीं पे काफी हद तक आपके खत्म हो जाएंगे। जो बहुत थोड़े बहुत बचेंगे वो आप अपने डिफरेंट कस्टमर केयर या और भी कॉन्टेक्ट अस मॉड्यूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो इससे आपकी जो कंपटीशन की एबिलिटी है, क्योंकि वो तुरंत ऑनलाइन चेक कर लेगा, कंपीट कर देगा, तो वो भी बढ़ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन की जो आपकी क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सिक्योरिटी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो ऑल पेमेंट शुड बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड आल्सो सिक्योरिटी। इसके कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी। इसका 2019 में क्वेश्चन आया था, आई रिटन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2019 में पूछा गया था। सो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर is the major form of electronic commerce system in banking and the organization. So all the fund should be transferred through a payment gateway or the different mechanism by which the transfer of payment should be done electronically. वो चाहे क्रेडिट ट्रांसफर हो, आप पेमेंट गेटवे बना दीजिए, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, या कुछ भी हो, वो सारे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही सारे ट्रांसफर होंगे और जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म होते हैं। सो लेटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है टाइम भी मैंने देखा है काफी हो गया। नेक्स्ट क्लास किसकी है आपकी? मयंक सर की क्लास है। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा कवर ही कर लेता हूँ, क्योंकि मयंक सर की क्लास तो होगी नहीं, इसको कवर ही कर देते हैं। अभी 10 मिनट लेकर के ये एक छोटा सा टॉपिक बचा है, तो ये आपका ये खत्म ही हो जाएगा, ई कॉमर्स का पार्ट। सो कम टू द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू that all the transfer of fund, all the payment mode will be done through electronically with the help of different payment gateway. There are different technologies to capture and process money and credit transfer between your banks and the business or their customers also. There are also some e-commerce companies which have their own bank, which have their own wallet, और वहाँ पासबुक का टाइप का सब तरह का सिस्टम वहाँ पे होता है। वो पेटीएम को आप देख लीजिए, और अमेजॉन भी इसमें बहुत ज्यादा डील करता है। मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया हुआ था। आप रिचार्ज से लेके बिजली का बिल सब कुछ वहाँ कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब सारे जो है ट्रांसफर आपके हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर इम्पोर्टेंट फीचर्स, द process is done just in time, just in time। जो जावा की प्रॉपर्टी ना, उसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, सेम जो प्रोसेस का फीचर है वो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भी यही होता है कि ये जस्ट इन टाइम की तरह आपको प्रोसेस कर देता है डेटा। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होता है, ये नहीं कि आपको कहीं पे वेट करना है, चेक क्लियर करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, ये सब कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ सिक्योरली, फ्लेक्सिबल, एंड जो सिक्योरिटी की बात कर रही है वो भी इफिशिएंट होती है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सिक्योर योर पेमेंट गेटवे, योर पेमेंट प्रोसेस। उसमें आप डिजिटली सिग्नेचर की बात कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, और इट इज आल्सो नोट टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे पेमेंट गेटवेज वो अपना एक अलग से फीचर्स, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर एसएसएल फीचर्स को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर मोड को ही हाइड कर देते हैं। वो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो सब कुछ आपके और बैंक के बीच में डीलिंग होती है, यानी बैंक टू बैंक के में या कस्टमर टू सर्विस प्रोवाइडर्स बैंक के बीच में डीलिंग होती है। जब आप ट्रांसफर करते हैं अपने वॉलेट से भी, अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो पूरा हिडन होता है। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, सिक्योर्ड अभी यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में जब आपको इंटरनेट के बारे में और डीप में बताऊंगा
तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी में बताएंगे। इंटरनेट के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें सिक्योर्ड सॉकेट लेयर SSL, इसके थ्रू वो पूरा जो पेमेंट प्रोसेस है उसको हाइड कर दिया जाता है फ्रॉम थर्ड पार्टी। दिस डीलिंग इज डन ओनली बिटवीन द एक्चुअल कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बैंक टू बैंक डीलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए टॉपिक में खत्म करूंगा। नाउ दिस इज एंड फ्रॉम माई एंड, टॉपिक एंड फ्रॉम माई एंड। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, 5-10 मिनट ले लीजिए, और कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। एंड डोंट लीव द क्लास। Only 35 students write their attendance. Hurry up. बाकी सब कहाँ चले गए? चलिए जुड़ गए। 51 स्टूडेंट्स थे, अब तक 49 बचे, 46। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अब्सेंट हो जाएंगे।